چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ساکشی مہاراج کے ایک بیان کی وجہ سے اویسی کی مصیبتیں بڑھ چکی ہیں، اور اس وقت لگاتار ان کو بی جے پی کا جو کہا جاتا تھا کہ بی ٹیم ہے، اس پہ ٹھپا لگتا نظر آ رہا ہے۔ بنگال میں مدرسے میں اسسٹنٹ ٹیچروں کی بحالی میں 12 امیدواروں میں سے صرف ایک مسلمان کا نام ہونے کی وجہ سے ممتا بنرجی کی کس طرح کھنچائی ہو رہی ہے، وہ بات کہوں گا۔ گجرات میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے اویسی کی 32 فیٹ کی اونچی پتنگ کیوں موضوع بحث بنی ہے، اور اس کے علاوہ کرناٹک کابینہ توسیع کے بعد خود بی جے پی رکن اسمبلی نے یڈیورپا پر بلیک میلنگ کا الزام لگایا ہے۔ تو میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا جو یو پی سے آ رہی۔ اس وقت مسلمانوں پر پتھر بازی کرنے کا الزام خود ایک مسلم لیڈر لگا رہا ہے، اور اس وقت خطرے میں کھٹر حکومت آ چکی ہے۔ بی جے پی اور جے جے پی کے کئی ارکان اسمبلی کانگریس کے رابطے میں کہتے ہوئے جو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ بائیڈن کے حلف برداری تقریب سے پہلے الگ الگ طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اور بین المذاہب شادی کو لے کر الہ آباد ہائی کورٹ نے کیا بیان جاری کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات یہاں دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے یہ ساکشی مہاراج کی ویڈیو سن لیتے ہیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ کر رہے ہیں، بڑی مہربانی، ان کو بھگوان طاقت دے، اوپر والا خدا ان کا ساتھ دے۔ انہوں نے بہار میں بھی ہمارا سہیوگ کیا تھا، یو پی میں بھی کریں گے، اور بعد میں پشچم بنگال میں بھی کریں گے۔ ناظرین گرامی، آپ نے ساکشی مہاراج اسد الدین اویسی کے سلسلے میں ایک سوال کیے جانے پر کس طرح کا جواب دیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ نے سنا۔ اس کے بعد سے سوشل میڈیا میں جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، میڈیا میں جس طرح کی ڈیبیٹس چل رہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی کے بارے میں یہ بات بی جے پی کے علاوہ سبھی بی جے پی مخالف سیاسی پارٹیاں کہتی تھی کہ ان کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ وہ بی جے پی کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ بات خود بی جے پی کے سینئر رہنما اور اناؤ سے رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج نے کہی ہے کہ اویسی نے بی جے پی کی بہار میں مدد کی ہے، اور اب وہ اتر پردیش اور مغربی بنگال میں بھی بی جے پی کی مدد کریں گے۔ ساکشی مہاراج نے ایک بیان میں کہا کہ ایشور یعنی خدا کی کرپا کرم ہے، ایشور انہیں شکتی یعنی طاقت دے۔ انہوں نے بہار میں ہماری بی جے پی کی مدد کی، اور وہ اتر پردیش کی پنچایت اور اسمبلی انتخابات میں اور مغربی بنگال کے انتخابات میں بھی ہماری مدد کی۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ مخالفین کے ذریعے اسد الدین اویسی کی پارٹی پر بی جے پی کی بی ٹیم ہونے کے الزام لگاتار لگتے رہے اور ابھی تک لگائے جاتے رہے ہیں۔ مسلم نمائندے بھی ان کی پارٹی سے راضی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ، جبکہ اویسی نے ساکشی مہاراج کے اس بیان پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اس الزام کی تردید کی ہے کہ ان کی پارٹی بی جے پی کی مدد کرتی ہے۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، بہار میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوا دیگر بھی ریاستوں میں، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب اس کے بعد اس طرح کھلم کھلا ساکشی مہاراج کا اسد الدین اویسی کو سلسلے میں پوچھے گئے اس سوال کا جواب دینے کے بعد جس انداز میں انہوں نے ہنستے ہنستے اس کا جواب دیا ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے کہ اسد الدین اویسی کو تو سیکولر پارٹیاں جو ویسے بھی پیچھے پڑے رہتے وہ بخشتے نہیں ہیں۔ اب وہ لگاتار اس کی کھنچائی کر رہے ہیں، اور بلی تھیلے سے باہر آنے کی بات کرتے ہوئے الگ الگ طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس بیچ میں اسد الدین اویسی کا اسٹینڈ کیا رہتا ہے، واقعی میں آگے بڑھاتے ہیں یا پھر جو ہے ان کو لگاتار ایک قسم کا جو ایک الگ ہی قسم سے دیکھا جا رہا ہے اس وقت مسلم کمیونٹی میں اسد الدین اویسی کو، کیا اسی طرح کی وہ پبلسٹی ملے گی یا پھر جو ہے اس میں نہیں، یہ ساری چیزیں اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔
नाज़रीन गिरामी, ममता बनर्जी की हुकूमत को अक्सर ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम दोस्त हैं, लेकिन बाज़ फ़ैसलों पर इस कदर उन पर तनकीद की जाती है कि जिसकी इंतहा नहीं होती। एक ऐसे वक्त में जब एक जानिब ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत को बीजेपी की जानिब से सख्त चैलेंजों का सामना है और दूसरी तरफ ओवैसी व पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी इत्तेहाद की वजह से मुस्लिम वोट बैंक बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे गुज़श्ता 10 सालों में मुसलमानों के लिए ठोस इक़दाम न करने का इल्ज़ाम ममता हुकूमत के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे वक्त में मगरबी बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने वजारत अक़लियती उमूर व मदरसा तालीम के तहत चलने वाले हाई इंग्लिश मीडियम मदरसे के लिए बहाल किए गए 12 असिस्टेंट टीचरों में महज एक मुस्लिम उम्मीदवार होने की वजह से हुकूमत पर इस वक्त सवाल उठने लगे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से शाया इश्तिहार नंबर 4/2017 के तहत 12 टीचरों को बहाल किया गया। इसमें ओबीसी कोटा के तहत 2 अफराद की बहाल हुई है। इसमें एक ओबीसी ए के तहत मुस्लिम उम्मीदवार है। इससे कबल भी जुलाई में जोग्राफिया के सब्जेक्ट के लिए 12 असिस्टेंट टीचरों को मुंतखब किया गया था। उस वक्त पर भी इस पर सख्त तनकीद की गई थी। मगरबी बंगाल में हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल चलने वाले मदरसों में असातिज़ा की बहाली के लिए मदरसा सर्विस कमीशन कायम है, मगर हुकूमत ने इंग्लिश मीडियम हाई मदरसा बराह रास्त हुकूमत बंगाल के ज़ेर कंट्रोल में, इसलिए हुकूमत ने इन मदरसों में असातिज़ा की तकर्री के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इश्तिहार दिया था। इसके लिए बड़ी तादाद में मुस्लिम और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी थी और मार्च 2020 में इंटरव्यू भी हुए। जोग्राफिया के सब्जेक्ट के जुलाई में नताइज शाये हुए थे। बैकअप नाज़रीन, ने लंबी रिपोर्ट है। अब जो है मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के इस फैसले को लेकर के उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में जब हर तरफ से आपका घेराव हो रहा हो, उस वक्त आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिससे अक़लियत जो है नाराज़ होने के बजाय आपसे राज़ी हो जाए, ये बेहतर होता है। आइए नाज़रीन, असदुद्दीन ओवैसी की एक पतंग भी इस वक्त बहुत ही ज़ेर बहस है और वो भी गुजरात में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आंध्र प्रदेश से निकलकर अब धीरे धीरे मुल्क की दीगर रियासतों में भी अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र और बिहार में इस पार्टी ने अपनी शनाख्त काफ़ी हद तक बना ली और अब उसकी कोशिश मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात की सियासत में हलचल मचाने की है। गुजरात में होने वाले बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र ओवैसी की पार्टी MIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारतीय ट्राइबल BTP के साथ इत्तेहाद किया है और पतंग इंतखाबी निशान के साथ ओवैसी आसमान में दूर तक सफ़र करने का इरादा रखते हैं। इस दरमियान गुजरात में 32 फीट ऊंची एक पतंग सामने आई जिसमें ओवैसी की तस्वीर है और लोगों के दरमियान इस वक्त ये मौजूए बहस बन गई है। दरअसल गुजरात में मकर संक्रांति के मौके पर लोग खूब पतंगबाजी करते हैं और अहमदाबाद के जमालपुर में 32 फीट ऊंची पतंग लतीफ़ रंगरेज ने बनाई है। पतंग के बारे में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुजरात में पहली बार MIM मैदान में उतर रही है, इसलिए हमने ओवैसी का इस्तेमाल करने के लिए ये पतंग बाज़ार में उतारी। इस पतंग को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि ओवैसी की तस्वीर में अपनी छोटी पतंगें भी बाज़ार में इस वक्त खूब पसंद की जा रही है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, अलग अलग मौजू है। आप लोगों का किस तरह से पब्लिसिटी होती है, किस तरह से पब्लिसिटी की जाती है। और गुजरात में इस वक्त चूँकि पहली मरतबा असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं यहाँ के इंतखाबात में, तो अब देखना यह है कि वहाँ पर वो क्या गुल खिलाते हैं या यहाँ पर भी जो है BJP को फ़ायदा पहुँचाते हैं। नाज़रीन, कर्नाटक में काबीना का तोसी का अमल कल आया और हमने ये खबर आप लोगों के सामने रखी, लेकिन BJP में इस बात को लेकर हंगामा बरपा हो गया है। BJP के कुछ अरकान असेंबली ने खुलकर बगावत कर दी है और पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ब्लैकमेलिंग और पैसे लेकर वजारती ओहदे दिए जा रहे हैं। पार्टी के रुकन असेंबली बसनगौड़ा यत्नाल ने तो वज़ीर आला BS येडियुरप्पा पर ही उंगली उठा दी है और कहा है कि येडियुरप्पा को सियासत से सुबुकदोश हो जाना चाहिए। यत्नाल ने यह भी कहा कि जो भी ब्लैकमेल करता है या पैसा देता है उसे वज़ीर बना दिया जाता है। इसके लिए कोटा है, एक है CD कोटा और दूसरा है CD प्लस पैसा कोटा। बैकअप बसनगौड़ा के मुताबिक जिसने CD का इस्तेमाल कर ब्लैकमेलिंग की और फिर पैसा दिया उसे वज़ीर आला येडियुरप्पा ने अपनी काबीना में शामिल कर लिया। बसनगौड़ा यत्नाल ने इंतहाई तलख लहजा इख्तियार करते हुए भी कहा कि वज़ीर आला को CD के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया है और वो ब्लैकमेल हो गए हैं। BJP के एक दीगर रुकन असेंबली काला कप्पा बिंदी ने भी काबीना तोसी को लेकर नाराज़गी का इजहार किया है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, ये पूरी लंबी बहस है, ये सियासत है और ये सियासत हर जगह चलती है कि वजारत के ओहदों के लिए ख़रीदा और बेचा भी जाता है और लालच दिया जाता है या फिर ब्लैकमेल किया जाता है। ये तो हर रियासत की कहानी है। कर्नाटक में इस वक्त BJP के अरकान असेंबली ने जिस तरह से येडियुरप्पा के ख़िलाफ़ महाज खोला है, इससे महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें बगावत होने वाली है कर्नाटक में। बहरकैफ उधर हरियाणा से भी कुछ ऐसी खबर आ रही है
बी जे पी हुकूमत के खिलाफ किसानों की चल रही तहरीक के दौरान हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल चल रही है और खट्टर हुकूमत पर खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। हरियाणा कांग्रेस की सदर कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हुकूमत साजी की कोशिश कर सकती है। एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए हरियाणा कांग्रेस की सदर कुमारी शैलजा ने साफ कहा कि बीजेपी जननायक जनता पार्टी जेजेपी जिसको कहा जाता है और कई आज़ाद अरकान असेंबली कांग्रेस के राब्ते में। शैलजा ने कहा कि खट्टर हुकूमत आवाम का एतमाद खो चुकी है और कांग्रेस रियासत में सियासी खला नहीं छोड़ेगी। जब ये बयान आया यहाँ से तो यहाँ पर भी इस वक्त जो है बीजेपी हुकूमत में एक किस्म की बगावत देखने और नाराज़गी देखने को खुद लीडरों के दरमियान में महसूस किया जा रहा है। बहके पे बयानबाजियाँ चलती रहती है, एक दूसरी पार्टियाँ जो दावे करती रहती हैं कि सामने वाली पार्टी के कितने अरकान असेंबली उनके राब्ते में है और अपोजिशन ये भी दावा करती रहती है, इख्तिदार वाली पार्टी दावा करती रहती है और ये सब खेल चलता रहता है। हकीकत यह है कि यहाँ पर जो है जो अवाम इनको चुन करके लाते हैं उनके जज्बात के साथ, उनकी सोच और फिक्र के साथ खेला जाता है। ये लोग उस वक्त तक अवाम की बात करते हैं जब तक अवाम उनको वोट देती है। जब वोट दे करके चुन करके आते हैं तो फिर अब से उनके अवामी मसाइल से कोई मसला नहीं रह जाता। उनको अपनी इख्तिदार की हवस और फिर उससे जो मुनाफा कमा सकते हैं ज़ाती फ़ायदे के लिए वहीं तक वो महदूद होकर रह जाते हैं। आइए नाज़रीन, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के दारुलहुकूमत वाशिंगटन के मेट्रो हुकाम ने नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के हल्फबर्दारी तकरीब से कबल 13 मेट्रो स्टेशन बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। ट्रैफिक इंतज़ामिया ने यहाँ जारी एक बयान में कहा है कि 15 जनवरी से 21 जनवरी तक 13 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और ट्रेन सर्विस मखसूस तयशुदा अवकात के मुताबिक जारी रहेगी। इसके अलावा 26 बस रूट्स के आसपास के सिक्योरिटी दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। जो बाइडन की हल्फबर्दारी तकरीब 20 जनवरी को होगी। वाज़ेह है कि 6 जनवरी को अमरीकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर इंतखाबी नताइज से नाराज़ ट्रंप के हामियों के हमले में कम अज़ कम 5 अफराद हलाक हो चुके थे। उसके बाद से अभी तक मुआखज़ा जारी है ट्रंप का और इससे पहले ही मुमकिन है कि ये किस तरह क्यों ये सिक्योरिटी के बायस इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं या फिर ट्रंप का कोई और ही मंशा हो सकता है, ये सब आने वाले अय्याम ही बताएंगे। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त 20 जनवरी का इंतज़ार कर रही है कि देखना है कि उस दिन किस तरह की सिचुएशन अमेरिका में पैदा किए जाने की कोशिश होती है या पैदा होती है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में बैनुल मज़ाहिब शादियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शादियों से कबल नोटिस चस्पा करने और उस पर एतराज़ात तलब करने को गलत करार दिया है। अदालत ने इसे आज़ादी और राजदारी के बुनियादी हक़ को खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस तरह का फैसला सुनाने के बाद इस वक्त योगी हुकूमत पूरी तरह से जो है तनकीद की जद में आ चुकी है। अदालत ने कहा कि किसी की मुदाखलत के बगैर अपने शरीक हयात का इंतखाब करना बुनियादी हुकूक में शामिल है। स्पेशल मैरिज एक्ट के एक मामले में अदालत आलिया ने इस फैसला सुनाया और 1 महीने की शादी करने वाले जोड़े के फ़ोटो और तफसीलात को नोटिस बोर्ड पर लगाने की पाबंदी को भी ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन, फैसले में कहा गया कि शादी करने के कहाँ लड़का और लड़की अगर तहरीरी तौर पर दरख्वास्त पेश करते हैं कि उनकी तफसीलात नोटिस बोर्ड पर चस्पा ना की जाए तो इस दरख्वास्त को कबूल करके उनके बुनियादी हक़ की हिफाजत की जाए। ताहम मैरिज अफसर को इख्तियार होगा कि वो दोनों फ़रीक़ैन की शनाख्त, उम्र और दीगर हक़ाइक़ की तस्दीक करे। अदालत ने तबसरा भी किया कि इस तरह के इक़दाम सदियों पुराने हैं जो नौजवान नस्ल के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी करने के मुतरादिफ़ है। बगैर नाज़रीन, लव जिहाद के नाम पर प्रोपेगेंडा करके एक नया कानून जो लाया और उसके बाद जिस तरह से इस्तेसाल किया जा रहा है मुसलमान नौजवानों के साथ, जिस तरह की जो है जुल्म व सितम अपनाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। यही वजह है कि जो इस वक्त लगातार ये मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं और एक एक करके फ़ैसला सामने आता जा रहा है और अदालतों के फ़ैसले और फरमान साफ तौर पर ज़ाहिर होता है कि हालिया लाया हुआ पूरा कानून वो आइन के ख़िलाफ़ है, लेकिन हरदरम कौम, हरदरम हुकूमत है, सुनने का नाम नहीं ले रही। नाज़रीन, आखिर में एक वीडियो सुना करके मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ कि आप लोगों को मध्य प्रदेश में क्या हुआ मालूम है। इस वक्त राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूलने की तैयारियां जारी हैं। कहीं जो है इसको पूरी तरह पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कई लोगों ने अपनी जान भी खोई और कई मुसलमानों के घरों को नजर आतश भी कर दिया गया, तोड़ फोड़ मचाई गई और कई नौजवान इस पर भी इस वक्त जो है क़ैद-ओ-बंद की सोबतें झेल रहे हैं। ऐसे में एक मुसलमान लीडर ही अगर कहे कि मुसलमान वो जो बिकाऊ होते हैं वो पत्थर मारते हैं तो आप क्या कहेंगे। दरअसल ये जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एसपी के इस रुकन असेंबली हैं। उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने निकलेंगे, कुछ फ़रोख्त हुए बिकाऊ किस्म के मुसलमान पथराव करेंगे और इससे बीजेपी को इंतखाबात में फ़ायदा होगा।
چلیے بی جے پی کو انتخابات میں فائدہ ہوگا یہ مان لیتے ہیں، لیکن کیا بی جے پی کے لوگ جو رام مندر کے لیے چندہ جمع کرنے نکلتے ہیں ان پر پتھراؤ کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں؟ یہ کہاں سے ثابت کر پائیں گے؟ کئی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے حالات بنانے کے لیے خود بخود پتھر بازی ہوتی ہے یا زبردستی پتھراؤ کا الزام لگا کر کے حالات کو خراب کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ بہرکیف جو بھی تحقیق ہوتی ہے پولیس کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن ایک ایس پی لیڈر کی جانب سے اس طرح کا الزام لگانے سے اس وقت مسلمانوں میں بہت زیادہ ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہ مسلمانوں پر اس وقت الزام لگا رہے ہیں، اور خود ایک مسلمان رکن اسمبلی ہونے کے تئیں ایس پی کے لیڈر کو یہ زیبا نہیں دیتا، یہ کہتے ہوئے ویڈیو شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف اس کو آواز سے تھوڑی دیر سنیں، پھر مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے پاس ایک بڑا اچھا ہتھیار ہے بھائیوں، میں ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس فارمولہ ہندو مسلمان کا، یہ آخر میں لا کے ایسا ہندو مسلمان کریں گے کہ لوگ بھولے والے لوگ دھارمک بھاوناؤں میں بہ کے ان کو ووٹ دے دیتے۔ یہی بات، رام مندر بن رہا ہے، چلیے ایک مسئلہ ختم ہو گیا، انہی کے لوگ جب چندہ لینے نکلیں گے تو چند بکے ہوئے مسلمانوں سے ان سے پتھراؤ کرا دیں گے۔ پتھراؤ کے بعد ان کے ساتھ جو حشر ہوا مدھیہ پردیش میں، وہ آپ نے دیکھا، وہ میسج دے رہا ہے ہندو کمیونٹی کو کہ ہم یہ حشر کر سکتے ہیں۔ پتھراؤ کرنے والے بھی یہی تھے اور ان کو حشر میں گاڑنے والے بھی یہی تھے۔ اس سیاست کو سمجھو بھائی۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔